played truant today. Vice President's plane kept circling Ludhiana for more than 1 hour, and the visibility just did not improve, and he had to land in Amritsar. The Honorable Governor was at the Alwara airport to receive him, and then he waited about 45 minutes in Amritsar for the weather to improve, but unfortunately it was not to be. So my sincere apologies to the children, teachers who have been sitting here since 9:30, and our awardees. First of all, let me extend a very, very warm welcome to our chief guest, Honorable Shri Gulab Chand Kataria ji, the Honorable Governor of Punjab. I had the opportunity of meeting him in the last few weeks, couple of times. We were together at ISB graduation ceremony yesterday. So first of all, I must, convey my grateful thanks for you to having agreed to come here as the chief guest, and I'm sure we will have another opportunity of inviting the Vice President of India to the Satpal Mittal School. Let me first of all share with you the ethos and the vision why the school was set up. The Nehru Siddhant Kendra Trust, of which I am the president, decided one day to bring in a high quality educational institution to the city of Ludhiana, which no one had seen until then. Come 2004, the school was inaugurated by the then Chief Minister, Captain Amrinder Singh. And sir, I'm very happy to share with you that we completed 20 years this April. And the school ranks at number 25 out of 1,000 schools at the national level. So that is a journey which we traversed and covered in a short span of 20 years. और जो 1000 स्कूल की मैं बात करता हूँ, उसमें वो स्कूल हैं जो बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं जिनके जो 10 सालों से 50 सालों से चल रहे हैं. So my compliments to the team at the Satpal Mittal School. My compliments and grateful thanks to the members of the Governing Council and the trustees of Nehru Siddhant Kendra Trust for their utmost cooperation and faith reposed in the team here. So let me also take the opportunity of sharing that the Nehru Siddhant Kendra Trust also has started a school for the disadvantaged children. Horizon School of Excellence, which is on the Chandigarh Road when we go from Ludhiana at Bhamia. Currently there are 300 students who are getting free education. We don't charge a single rupee. In addition to that, uniform, books, midday refreshment. And the vision is that those children who come from those segments of society will not only compete with the best in class of this town and other schools, but more importantly, they will also ensure that they partake in the economic growth of our country. हमारा ये काम है कि हमने उनको उंगली पकड़ के पिछले साल अप्रैल में जब स्कूल का इनॉग्रेशन किया, उनको उंगली पकड़ के हम स्कूल के अंदर लेके आए. प्रिंसिपल जो हमारे यहाँ बैठी हैं, उनकी मेरी वो कमिटमेंट है कि जब 12वीं क्लास का बच्चा पढ़ के जाएगा, वो हमारी उंगली पकड़ के बाहर निकलेगा, इस देश में अपना इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देगा. And if I reflect back education, right from Prime Minister Vajpayee ji, जब उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, how the education ecosystem is transforming. But I think more importantly, मेरा ये मानना है कि education ही is not the end of all. मैं ये कहता हूँ कि if it is education without values and a value system, that education has no meaning. To me, it's like preparing or churning out robots and machines. We need to be human. So therefore, I'm very proud that the Satpal Mittal School, the Horizon School of Excellence, we only just not talk of education, but we ingrain a very, very big, strong value system amongst our students. Because someone has said values are more important than valuables. I think that's the difference which we need to understand. Sir, you are also Chancellor of universities and institutions around the state.
The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has talked about revolutionizing the education ecosystem. India is merging the technology with traditional way of teaching and values. New Education Policy 2020, I think, is one of the finest documents, which has been brought in by the Ministry of Education, Government of India, where we talk of integrating technology in learning, artificial intelligence for all, and more importantly, Diksha Swayam portals, which are accessible for high-end online courses. I would also like to share that my own foundation, the Bharti Atal Foundation, which is running 164 village schools where we provide free education. ये जो लुधियाना का उसी चीज़ को सामने रखते हुए ट्रस्ट ने किया. We are launching, sir, on the 25th, the teacher app. जो टीचर्स के लिए एक गाइडेंस होगा, एक उनको एडवाइस करेगा ऑन पेडागोजिकल स्किल्स, लेक्चर कैसे क्लासरूम में डिलीवर करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन. सो दैट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑन 25 नवंबर. और आज इस बार हमें लगभग 190 के करीब नॉमिनेशंस आई इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी. ज्यूरी का ये काम है कि उसमें कैसे छाना जाए कि जो नगीने, जो हीरे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे छांटी की जाए. इफ आई मे से इन हिंदी, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट यू विल बी कॉन्फरिंग द सतपाल मित्तल नेशनल अवार्ड्स टुडे on in the individual category to Dr. Vandana Gopi Kumar, the Platinum Award, which carries an amount of 7.5 lakhs. And the institutional in the institutional category, Goonj will get the Platinum Award with the same amount. And the second category of Gold Award will be presented to Mr. Prashant Gade and the Salam Balak Trust. सर, इन्होंने जो काम किया है वो अपने आप में एक बहुत अहम है, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसे लोगों की, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जहां मेंटल हेल्थ फॉर होमलेस इंडिविजुअल्स किया जा रहा है. 1000 बेड्स हैं. और सर, सबसे बड़ी बात है कि 70% जो हैं उनको री इंटीग्रेट किया गया अपनी फैमिलीज़ के साथ. नहीं तो घरों में मेंटल हेल्थ जो है पेशेंट्स को रखना बड़ा दिक्कत होता है. इसी तरह अगर मैं गूंज की बात करूं, दे हैव इम्पैक्टेड 18 मिलियन लाइव्स अक्रॉस द कंट्री. दे हैव चैनलाइज्ड 63 मिलियन ऑफ अर्बन सरप्लस which has been distributed to the people who want it through 96,000 grassroots initiatives across the country. On the Gold Award, young Prashant Gade is sitting here, and he started providing prosthetics, electronic prosthetics. 10,000 के ऊपर लिम्स का, आर्टिफिशियल लिम्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो है, वो इन्होंने मुहैया करवाए हैं, और उनकी लाइफ चेंज होगी जिनको ये बेनिफिशरीज इनको मिले हैं. सलाम बालक ट्रस्ट 1988 से चल रहा है. ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर बच्चों को देते हैं. 12,000 बच्चे सालाना ये देखभाल करते हैं अपने शेल्टर्स में, और अभी तक 1.5 लाख बच्चों को बेनिफिट कर चुके हैं. एनुअली 5 लाख मील्स देते हैं, और इन्होंने 29,000 के ऊपर जो बच्चे लॉस्ट थे उनको अपनी परिवारों से मिलाया. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है. आई कैन ओनली से दैट I thank each one of you because you are giving us the opportunity to not only identify you but also the opportunity to recognize you. Our effort is a very small effort in the ocean in front of what you are doing. So keep up the good work, and I can only say we need many more such initiatives. I would like to congratulate all the winners, all the children who are going to get scholarships, and the schools who won the Nehru Trophy. I can only say in the end, let's inspire each other to continue to give back. Let us foster transformation and driving a positive change in India. Dr. APJ Abdul Kalam rightly said, greatness lies in not what you possess, but in what you share with the world. And I can tell you, the more you give, the more happy you will be. And this is for my students, my Satyans and the students from the government schools who have come here for scholarship. And sir, I will end with one quote जो मैंने पढ़ा. A day spent helping no one but yourself
is a day wasted in life. So with these words, I once again thank you, sir, the Honorable Governor, to take out time from his very busy schedule. I know you have your engagements, you have to go back to Chandigarh, so will not take much time, and I will ask that we can go ahead with the distribution of the awards and the scholarships. Thank you very much once. आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे विद्यालय में उपस्थित हूँ जिसका बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, और मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा और संस्कार के माध्यम से अपना राजनीतिक जीवन भी जिया हो, आदरणीय स्वर्गीय श्री सतपाल मित्तल जी और उनके सुपुत्र राकेश जी, जिन्होंने इस शिक्षा की ज्योति को जलाने का प्रयास किया, और मुझे जैसा बताया कि ये 2004 से ये विद्यालय अपना व्यक्ति निर्माण का एक जो सबसे महत्वपूर्ण और समाज में काम है, उस काम को ही कर रहे हैं। बताया कि नेहरू जी के जीवन से वो बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने इसीलिए नेहरू जी का भी वर्ष लगभग 135वां वर्ष है, और आपका ये अवार्ड देने का जो क्रम है, ये भी शायद 32वां अवार्ड अवसर जो है ना यहाँ है। स्कूल उसके बाद बना है, और स्कूल में जिस प्रकार से बच्चों की शिक्षा और संस्कार दोनों का प्रयत्न हो रहा है, मैं आपका और उन सब प्रिंसिपल और गुरुजन साथियों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से इन बच्चों को संस्कारित करने का और शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयत्न किया। यहाँ कई शिक्षाविद बैठे हैं। मुझे सबसे बड़ा जो सुखद अनुभव हुआ कि समाज के उन लोगों को ढूंढना तो सामान्यतः बहुत कठिन काम होता है। ये ठीक है, आपके जो निर्णायक बंधु हैं उन्होंने बहुत प्रयत्नपूर्वक 190 लोगों में से कुछ लोगों को छांटा आपने, और उनकी जीवन की जो सेवा है, अपने काम के बारे में जो समर्पण और जीवन है, उसको आपने यहाँ मंच पर बुला करके सम्मानित किया। तो मैं सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति का मंच पर बुला करके सबके सामने सम्मान करना केवल उनका ही सम्मान नहीं होता है, वो भविष्य की पीढ़ी भी इस बारे में सीखने का प्रयत्न करती है कि अच्छे कामों का जब देश में सम्मान होता है तो अच्छे काम अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक अच्छी परिपाटी जो है ना आपने शुरू की है, जैसा आपने स्वयं ने बताया कि हम इस वर्ष ही केवल 1600 से अधिक 40 बच्चों को है ना इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की एक तरह से उनका सम्मान और सहायता राशि और उनको दे रहे हैं। अब तक पता नहीं आपने कितने बच्चों को इस तरह से सम्मानित किया होगा, और कितने समाज के प्रतिष्ठित लोगों का भी सम्मान किया होगा। इससे भी ज़्यादा मुझे खुशी है कि आप हिंदुस्तान के इस विद्यालय का 30वीं रैंक है, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है। कोई विद्यालय जो चयन होता है वो केवल और केवल उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड से नहीं होता है। विद्यालय का जो नापतोल होता है उसके सर्वांगीण जो क्षेत्र हैं उनमें वो बच्चों को कैसे ग्रो करते हैं, उसके बारे में उनका एनालिसिस होता है, और उसके आधार पर उसका चयन होता है। तो बहुत सुखद अनुभव है मुझे इस बात का। मैं सोचता हूँ कि अभी जो मुझे बताया कि इस विद्यालय में लगभग 1560 बच्चे जो है ना अध्ययनरत हैं। इसके अलावा जो आपने बताया कि आपने कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार की दृष्टि से कमज़ोर हैं, वो एक अच्छी शिक्षा से जोड़ना उनके भाग्य में नहीं लिखा होता है। टैलेंट तो बहुत होता है, क्योंकि टैलेंट किसी के स्वयं का अधिकार नहीं है। टैलेंट तो प्रभु देता है, पर उसको पहचानने वाले लोग चाहिए जो उस टैलेंट को पहचान सके। तो आपने उन 300 बच्चों को भी अपने यहाँ रख करके सब प्रकार की उनकी मदद करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया कि बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी आप प्रयत्न करें। और कल जहाँ मैं था ISB,
मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की टॉप संस्थाओं में से आप उस संस्था को आज खड़ा कर दिया है ना। एक तरह से आपकी दो ब्रांच है, हैदराबाद और यहाँ, इन दोनों के प्रयत्न से आपने इतने बच्चे और इतने अपने अधिकारी जो अपने व्यवसाय में लगे हैं उनका चयन हुआ, और उसके कारण से वो आज देश और दुनिया में अपने स्वयं की स्किल और अपनी बुद्धि का एक तरह से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से समाज की बहुत बड़ी जो मैं सोचता हूँ कि उपलब्धि इस बारे में होगा। फिर अभी आपने कुछ बच्चों को बुलाया कि केवल और केवल हम पढ़ाई की दृष्टि से ही हमारा स्कूल नहीं है, तो खेल की दृष्टि से भी, बाकी एक्टिविटीज़ की दृष्टि से भी हमारे बच्चों की सब प्रकार की स्किल का विकास होता है। तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे कठिन कोई काम है तो वो है इंसान को गढ़ने का। कारण क्या है, पत्थर की मूर्ति गढ़ना बहुत आसान है, किसी धातु की मूर्ति को भी संचय में डाल के तैयार करना बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य को गढ़ना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो तो हिलता डुलता है, एक्शन रिएक्शन भी करता है, पता नहीं वो काबू में आता है कि नहीं आता है। उसको समझना और फिर उसके नक्श नाक्षी ठीक करना और उसको ठीक प्रकार से आकृति देने का प्रयास करना, ये सबसे कठिन काम है। इसलिए गुरु का महत्व इसी कारण से है। गुरु का महत्व अनादिकाल से था, आज है, और जब तक धरती चलेगी, इंसान रहेगा, तब तक गुरु का महत्व रहेगा। भगवान राम भी पहले दिन राम नहीं बने थे, पहले दिन तो कौशल्या के लड़के के रूप में ही थे, लेकिन अपने गुरु वशिष्ठ के पास में एक तरह से गुरु ने जिस प्रकार से उसको गढ़ने का प्रयास किया, वही कारण है। गुरु द्रोणाचार्य ने तो राजा महाराजाओं को शिक्षा देने के काम का, लेकिन एकलव्य जैसे बालक के मन में आया कि नहीं, मैं भी गुरु से जो है वो शिक्षा प्राप्त करूंगा और मैं भी कुछ अच्छा बनूंगा। गुरु ने अपनी मजबूरी बताई कि मैं देता नहीं हूँ, पर उसके मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान था, तो एक मूर्ति ने भी उस आदमी को तराश दिया। तो गुरु की कृपा और केवल दृष्टि पड़ जाए ना, और बच्चा अगर उससे अपने आप को खींच ले, तो मैं सोचता हूँ बच्चे का जीवन बनता है। इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसको तराशा किसी गुरु ने नहीं? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस तरह से गढ़ा, अगर विवेकानंद नहीं गढ़ा जाता, रामकृष्ण मूर्ति नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो गुरु का महत्व है वो आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि हमने शिक्षा तो दी पर संस्कार से थोड़े दूर हो गए, और बिना संस्कार के शिक्षा का अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इसको सब लोगों ने कहा, आपने कहा ना कि अब्दुल कलाम आज़ाद, एक गुरु का क्या मॉडल हो सकता है, ये कल के दिन इस देश के लोगों ने देखा है।